चलो ठीक है. Since this is the live that I'm trying after a very very long time, so which is why the delay. Never mind. This is July 21st to July 31st. In the previous class that we had, I had mentioned it to you that the number of topics are definitely going to increase. And you see, there are 24 topics in this present week, right? So 24 topics, what are we going to do? How are we going to cover these 24 topics? So what are we required to understand? What are we required to understand over here is this, that we are going to break down the topics into different components. Now, breaking down the topics into different components means that we will be firstly identifying कि क्या मेजर है, क्या माइनर टॉपिक्स हैं. 24 टॉपिक्स हैं तो सारे ही टॉपिक्स 2 घंटे में तो कवर हो नहीं सकते. तो इसीलिए हम कोशिश करेंगे कि हम मेजर टॉपिक्स को पहले कवर करें. फर्स्ट टॉपिक, कैपिटल, रिलीजियस एंड टूरिज्म कैपिटल जो है, कल्चरल एंड टूरिज्म कैपिटल ऑफ शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन. फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम वाराणसी एक ऐसा शहर है जिसको कि इन लोगों ने जॉइंट डिसीजन, म्यूचुअल डिसीजन के हिसाब से इसको कल्चर और टूरिज्म कैपिटल. पर्पज ऑफ शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये कैसी ऑर्गेनाइजेशन है? दिस इज अ रीजनल ऑर्गेनाइजेशन. नाउ दिस इज अ रीजनल ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्विंग सम ऑफ द कंट्रीज फ्रॉम सेंट्रल एशियन रीजन. So we need to first discuss some facts about Shanghai Cooperation Organization and then this. So this becomes a major topic. Jagrati is the new mascot for consumer rights with reference to Consumer Rights Protection Act. Now, Consumer Rights Protection Act is the leading legislation in India where the rights of the consumer is required. Who can be a consumer as per the law? Consumer can be anyone who is basically the consumer of goods or services, right? It is governed by Consumer Protection Act 2019, but there was a previous act, Consumer Protection Act 1986. In that act, certain loopholes were there because of which the government, or you can say the judiciary, the law deciding body, was unable to provide timely justice to the consumers. For the very same reason, this was amended in 2019. So salient features of Consumer Protection Act also is important, becomes a major topic. Commissioning of INS Vikrant, India's first indigenous aircraft carrier. Now we can be diving too much into the details, history of INS Vikrant, but for the very fact that only one question can be formed from INS Vikrant point. So what are we going to do? We are going to look into some of the basic facts about INS Vikrant. So it's not a major topic, right? US issues waiver to India against CARTSA sanctions, countering American adversaries through sanctions act. This was an act of United States of America of 2017. इंडिया को वेव ऑफ कर दिया है इससे. तो इसमें क्वेश्चंस क्या पूछा जा सकता है? इंडिया का कौन सा डील है रशिया के साथ, कितने बिलियन का डील है, कार्डसा सैंक्शंस किस प्रेसिडेंट के अंडर आए थे, कार्डसा सैंक्शंस को रिमूव कौन कर सकता है, लगा कौन सकता है, ये हमारे लिए मेजर टॉपिक नहीं है. इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 ये नीति आयोग द्वारा दिया जाता है, इसीलिए ये टॉपिक हमारे लिए मेजर टॉपिक है. ईयू और इंडिया का ह्यूमन राइट्स डायलॉग कंडक्ट हुआ है. इसमें हमें यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन एजुकेशन, सोशल एंड कल्चरल राइट्स. These three basically are the international laws which are together called as International Bill of Rights. Now there are repeated questions from International Bill of Rights. अक्सर पूछा जाता है कि क्या क्या IBR के अंडर आते हैं, इंटरनेशनल मैग्ना कार्टा किसको कहते हैं, इस तरह की बातें हैं. तो ये ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड है. हमारे यहाँ पे नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है, फंडामेंटल राइट्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, वो सब का कॉन्जेक्चर इस टॉपिक में देखा जा सकता है. ये हमारे लिए मेजर टॉपिक हो जाएगा.
वेब 3.0 और उसका डिफरेंस वेब 2.0 का। अब ये समय आ गया है, 5G टेक्नोलॉजी रोल आउट हो चुकी है, बिडिंग हो चुकी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ये सारी चीज़ें प्रमोट हो रही हैं। साथ ही में आपने देखा है एक नई टेक्नोलॉजी, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की नाम की टेक्नोलॉजी आ चुकी है, जिसमें एंड टू एंड यूजर कनेक्टेड है और कनेक्शन सबका एक सिरे साथ होना, एक सिरे से होना, एक चेन के फॉर्म में होना ज़रूरी है। इसीलिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को वेब 3.0 में इंटीग्रेट किया जा रहा है। किस तरीके से ये डिफरेंट है एक दूसरे से, इट्स अ गुड टू नो फैक्ट। But what can be attributed in Web 3.0, which among the following is not a part of Web 3.0? This kind of questions can appear to you, but this is not a major topic, so we won't be giving too much emphasis into that. India Bangladesh agrees on reducing trans border crimes. Now, this is an agreement like it is a regular agreement. It happens almost like every 2-3 years. The Border Security Force of India and Bangladesh, the security force, meet together. The generals decide among each other as to what are the new challenges. So this is a general topic, but India Bangladesh से related कुछ basic facts है, कितने लंबा border है इनका, कौन कौन से नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं जो बॉर्डर शेयर करते हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन हम देखेंगे। नाइन्थ टॉपिक, ये मेजर टॉपिक है, India Antarctic Bill. Like in previous class, we had discussed why everybody is so concerned about Arctic Circle, right? And we were discussing about why NATO is expanding along the seas towards Russia. Now, for the very same reason, not for the security reasons, obviously the government does not want to say that there are security reasons. Rather, there are research reasons, scientific reasons, there are fishing reasons. For the very same reason, this bill has been passed in the parliament. Now, the passing of the bill in the parliament means that there are certain fundamentals of this bill that we need to know as to what are the authorities created inside under this bill, what are the targets of this bill, which is the responsible ministry under this bill, which is the responsible department under this bill, those features, what are the research centers in Antarctica and Arctic Circle, those facts we're going to discuss. Significance of Supreme Court on judgment on the right to be forgotten. This is a major topic for you. IMF has releases the World Economic Outlook. Thank you so much. It releases every year. So, not a general topic. एक ही क्वेश्चन बन सकता है इससे कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक निकालने वाली बॉडी कौन सी है. Now there might be passages in your mock papers where they are asking you what are the particulars of World Economic Outlook, how it is different from that. But these all are too much depth, into too much depth. And with regards to CLAT paper, the current affairs that is asked in CLAT paper, the width is important, not the depth, which means you need to know a little about each and everything, not too much into detail. So we are going to only serve the demand of the examination. We are not here to study entire current affairs and become Sarvagyani, Mahagyani. We only want to know कि क्या facts important है. Russia decides to quit International Space Station. Facts about International Space Station 2024. This is not a major topic. United Nations declare healthy environment as a human right. This becomes a major topic. International Tiger Day is a major topic. 10 new Ramsar sites have been designated by India, taking total number of sites to 64 in India becomes a major topic. International Day for Conservation of Mangrove System becomes an important topic. 17th is important, Plastic Waste Management Rules 2021. Now this rule is old one, but there is a phasing out which is going to happen by 2022. And this is basically, I think, 125, if I am correct, 125 microns, the length of the plastic that we have to phase out. And in this you have word single use plastic ban. So single use plastic ban has been effectuated by amendments in the Plastic Waste Management Rules 2021. And notice that these are rules, which means ministry can timely change it. India registered a sustained growth in bioeconomy. So what could be bioeconomy? Not a major topic. National Action Plan on Climate Change becomes a major topic because you have recently seen that the Union Cabinet has given approval to three of the goals that Government of India mentioned in COP26. In COP26, we delivered 5 targets, 5 intended nationally determined contributions, and with that, 3 of them have been approved by the Union Cabinet. So, what is National Action Plan on Climate Change after all of 2005? Sorry, 8. That we need to see.
How many missions are under this action plan? Major topic. Similarly, Forest Conservation Rules 2021 are important under Forest Conservation Act 1980. We have a tendency, basically, the biggest confusion in our preparation remains that if a bill is introduced in the parliament, that is it important or not, a private member bill is important or not, anything that is still not decided finally by the legislature, that is the parliament, anything or any matter which is sub judice, right, like the final decision has not yet been given by the Supreme Court of India or the High Court, is not a major topic for CLAT preparation. Sub judice matters, लेजिस्लेचर में जो पेंडिंग मैटर्स हैं, जो बिल्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं, वो तब तक नहीं ज़रूरी हैं जब तक वो एक्ट ना बन जाए या वो जजमेंट ना दे दिया जाए. चाबहार डे, आपको पता है हम लोग बहुत ज़्यादा फोकस आजकल कर रहे हैं सीपैक पे, INSTC पे. ये हमने देखा कि इंटरनेशनल ग्रुपिंग के हिसाब से ज़रूरी है, तो ये भी डे इंपॉर्टेंट हो जाता है. ठीक है. हालांकि क्लैट ने चाबहार डे के ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ है पहले भी, लेकिन INSTC के ऊपर अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं आया है, तो हो सकता है कि ये क्वेश्चन आ जाए. समुद्रयान मिशन इंपॉर्टेंट है. क्लाइमेट फाइनेंसिंग के इशू जो है इंटरनेशनल फोरम्स में हर बार इंडिया ने रेस किया है कि वेस्टर्न कंट्रीज, अमेरिका, यूरोप, इन लोगों ने जो प्रॉमिस किया था डेवलपिंग कंट्रीज को कि $100 बिलियन दे देंगे 2025 तक, वो अभी तक नहीं दिया है. तो इसका जो क्लाइमेट फाइनेंसिंग का जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी है, कहाँ हुआ था, ये क्या है ग्रीन क्लाइमेट फंड, ये सारे फैक्ट्स इंपॉर्टेंट हैं. तो ये भी एक मेजर टॉपिक नहीं है, आप इसको सिर्फ और सिर्फ पढ़ लेना, लेकिन इसको हमें कनेक्ट करना है ऊपर वाले टॉपिक के साथ जहाँ पे आपने नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज पढ़ा था. UNCTAD वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट आई है FDI इनफ्लोज के ऊपर, जिसमें सिंगापुर सबसे बड़ा हमारे यहाँ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करने वाला देश देखा गया है. तो FDI क्या होता है और UNCTAD वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट क्या होती है, इसको शुरू करने के पहले बस एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बता दूं. बड़ा ही कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट्स को GST काउंसिल के फंक्शनिंग में और RBI के फंक्शनिंग में और फाइनेंस मिनिस्ट्री के फंक्शनिंग में डिफरेंस समझने में. अक्सर आपको एक सवाल पूछा जाता है, जैसे कि टेस्ट में भी आया होगा आपके, कि GST काउंसिल जो है वो कैसी बॉडी है, GST काउंसिल का नेचर कैसा होता है, व्हाट इज द नेचर ऑफ दिस बॉडी. नाउ GST काउंसिल को अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये एक तरह की बॉडी है जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट प्लस स्टेट गवर्नमेंट दोनों बैठती हैं मीटिंग के लिए. इनका फंक्शन क्या है, टाइम टू टाइम एनालिसिस करना, रिकंस्ट्रक्ट करना, क्या चीज, टैक्स स्ट्रक्चर्स. करेक्ट, रिकंस्ट्रक्ट करना टैक्स स्ट्रक्चर्स. इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का कौन बैठेगा, मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस. क्योंकि फाइनेंशियल मैटर में हमारा इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कैसा है, क्वासाई फेडरल है. क्वासाई फेडरल का मतलब ये होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसकी पावर स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर है, इसीलिए मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस इसको चेयर करता है. पर ये बॉडी का हमने आपसे बेसिक सवाल पूछा था, नेचर कैसा है, इस बॉडी का नेचर कैसा है. तो ये बॉडी बेसिकली 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत आई थी. कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2016 के तहत आई थी, जिसमें हमें जनरल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया था. क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, अमेंडमेंट कौन से आर्टिकल के अंदर होता है, आर्टिकल 368 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट होता है, जिसमें पार्लियामेंट अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट पावर को अडॉप्ट कर लेती है. इसीलिए ये 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की वजह से ये बॉडी कॉन्स्टिट्यूशनल हो जाती है. बट एक चीज और समझने वाली है यहाँ पे, आपसे एक क्वेश्चन घुमा के ऐसा पूछा जा सकता है. फॉर एग्जाम्पल दे कैन आस्क यू दिस क्वेश्चन, इफ इन्फ्लेशन हैज टू बी कंट्रोल्ड, which among the following body will take immediate decision.
इसमें आपको ऑप्शंस दे दे, आपको फाइनेंस मिनिस्ट्री बोल दे, ऑप्शन आपको दे दे नीति आयोग, ऑप्शन आपको दे दे फाइनेंस कमीशन, और लास्ट में आपको ऑप्शन दे दे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सवाल कह रहा है कि अगर इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है, हैज टू बी कंट्रोल्ड, कौन सी बॉडी डिसीजन लेगी। अब यहाँ पे अगर और कंफ्यूजिंग इसको करना है तो फाइनेंस नीति आयोग को हम हटा के यहाँ पे क्या लिख देंगे आपके लिए, जीएसटी काउंसिल। ये क्वेश्चन देखने में तो आसान लगता है कि बॉडीज ही तो हैं, लेकिन जब तक आपको इन बॉडीज का पर्टिकुलर फंक्शन ना पता हो, इन्फ्लेशन एज अ प्रॉब्लम ना पता हो, आप आंसर नहीं कर सकते। तो ऐसी जगहों पे क्या होता है, कॉमन सेंस भी प्रिवेल करने के लिए प्रीवियस नॉलेज का होना जरूरी है। अब इन्फ्लेशन जो प्रॉब्लम होती है वो होती है मार्केट फोर्सेस की वजह से। क्या इन्फ्लेशन में टैक्स का लेना देना कुछ है? क्या इन्फ्लेशन में टैक्स का लेना देना है? क्या टैक्सेशन बढ़ाने घटाने से महंगाई बढ़ती घटती है? एग्जैक्टली आंसर है यस। ऐसा होता है कि टैक्सेशन बढ़ जाए किसी चीज पे तो कंज्यूमर उस प्रोडक्ट को कम यूज करेंगे, उन सर्विसेज को कम लेंगे, क्योंकि उनको पता है कि इसको खरीदने के लिए पैसा सरकार को बहुत ज़्यादा देना पड़ेगा। पर वो डायरेक्ट डिसीजन, डायरेक्ट इम्पैक्ट उसका नहीं होता है महंगाई पे। आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि जो तेल का प्राइस बढ़ा है रिसेंटली, महंगा हो गया है पेट्रोल वेट्रोल, क्योंकि सरकार उसमें वैट ले रही है, करेक्ट। अब ध्यान रखना, पेट्रोल का प्राइस बढ़ना सरकार के वैट की वजह से नहीं हुआ था। पेट्रोल का प्राइस बढ़ा था क्योंकि सप्लाई शॉक्स थे। प्रोड्यूसर, जो मैन्युफैक्चरर, प्रोड्यूसर, एक्सट्रैक्टर जो ऑयल का है, उसने तेल कम निकाल रहा था, डिमांड ज्यादा थी, सप्लाई कम थी। जब डिमांड ज्यादा होती है सप्लाई से तो डेफिनेटली बिडिंग वाला सिनारियो हो जाता है, ऑक्शन होता है एक तरीके से, द हाईएस्ट बिडर विल गेट द ऑयल। तो इसकी वजह से तेल बढ़े थे। सरकार ने वैट को कम किया इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए। ये कॉमन सी बात है, लेकिन क्या है, हमें क्लिक नहीं करती है। तो गवर्नमेंट का जो टैक्सेशन सिस्टम है, टैक्स रेट्स जो है, वो महंगाई पे डायरेक्ट असर नहीं डालते हुए दिखाई देते हैं। महंगाई पे डायरेक्ट असर डालता है डिमांड सप्लाई की वजह से, या टू मच लिक्विडिटी, या टू मच लिक्विडिटी हो। लिक्विडिटी मतलब मार्केट में मनी हो। तो टू मच लिक्विडिटी, ऐसे डिमांड को हम कहते हैं डिमांड पुश इन्फ्लेशन, और टू मच लिक्विडिटी को हम कहते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, डिमांड पुश इन्फ्लेशन, कॉस्ट पुश पुश इन्फ्लेशन बेसिकली डिमांड सप्लाई से रिलेटेड है। लेकिन टू मच लिक्विडिटी भी एक फैक्टर है, पैसे से हम कनेक्ट कर रहे हैं। तो आपके जो मेजर रीजंस होते हैं वो 1, 2 एंड 3 होते हैं। किस चीज के? किस चीज के? इन्फ्लेशन के। दीज 3 आर द मेजर रीजंस फॉर महंगाई। नाउ इफ यू नोटिस दीज रीजंस, द अमाउंट ऑफ मनी इन द मार्केट, फाइनेंस मिनिस्ट्री हैज नथिंग टू डू विद इट, जीएसटी काउंसिल हैज नथिंग टू डू विद इट। डिमांड ज्यादा हो रही है तो फाइनेंस मिनिस्ट्री डज नॉट डू एनीथिंग। कॉस्ट ज्यादा लग रही है, लागत ज्यादा लग रही है, तो फाइनेंस मिनिस्ट्री हैज नथिंग टू डू विद इट। बट ऑल दीज कैन बी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेड by generally understanding the interest of bank rates. Interest of bank rates. Interest of bank rates can be given on the savings and can be given on the loan. Right? Usually in the situation where inflation is too high,
It might be because loan taking is easier. Loan taking is easier, and loan taking is easier means that the interest rates of bank to pay back the loan to pay back the loan is what? Is lower. Interest rates of the bank to pay back the loan is lower. So let's say if you are taking rupees 100 from the bank and the rate is 6% per annum. So in the end year, how much you have to pay? One, it is 100, so you have to pay 106. 6 रुपए ज्यादा देने। अब यही चीज आप 100 रुपए ले रहे हो और आपको इंटरेस्ट रेट दिया जाए 3.5% पर एनम का, तो आप क्या लोगे? ₹103.5 पे बैक करोगे। ये आपका अमाउंट होगा। यानी कि कम इंटरेस्ट रेट जो है, आप दोनों रेट्स को कंपेयर करोगे तो कम इंटरेस्ट रेट, लोअर इंटरेस्ट रेट ये है, तो लोअर इंटरेस्ट रेट विल प्रमोट व्हाट? लोअर इंटरेस्ट रेट विल प्रमोट व्हाट? It will promote loan taking activity. Loan taking activity. Why are people taking loan? So loan taking activity will push supply. That's true. Will push supply. क्यों? Businesses पैसा लेंगे, पैसा लेने से इन्वेस्ट करेंगे, प्रोडक्शन बढ़ेगा, इकोनॉमी में लेबर जो फोर्स है उसको रोजगार मिलेगा, तो एम्प्लॉयमेंट भी होगा, सप्लाई पुश होगा। लेकिन ज़्यादा लोन लेने से मार्केट में लिक्विडिटी का भी एक्सेस होगा, लोगों के पास पैसा भी ज़्यादा होगा खर्चने के लिए। जब पैसा ज़्यादा होगा खर्चने के लिए तो फिर से इन्फ्लेशन। तो डिमांड और सप्लाई का ये एक फाइन बैलेंस है जो कि आरबीआई जो है कंट्रोल करने की कोशिश करती है इन्फ्लेशन बनाने में। तो सरकार ने अभी लास्ट ईयर तक 2020 में कहा गया, 2021 में कहा गया, ऑपोजिशन गवर्नमेंट भी कह रही थी, ऑपोजिशन पार्टीज भी कह रही थी कि रघुराम राजन ने भी कहा कि ये जो आरबीआई का जो स्टैंड है वो पुश को, यानी कि इकोनॉमी में ग्रोथ को पुश कर रहा है। तो ये ग्रोथ पुश मॉडल बोला जाता है, जहां पे आप क्या करते हो? इंटरेस्ट रेट्स को कम रखते हो, बैंक ज्यादा से ज्यादा लोन देती है और लोगों के पास ज्यादा पैसा रहता है। तो इससे क्या होता है? ग्रोथ पुश होती है, ग्रोथ पुश होती रहती है। लेकिन मार्केट में ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम लोगों के पास पैसा ज्यादा सर्कुलेट होने लगा है। अब जब ज्यादा सर्कुलेट होने लगा है तो वापस से वही सिनारियो हो जाता है कि डिमांड कम हो रही है, सप्लाई कम हो रही है और डिमांड फिर से बढ़ रही है, क्योंकि लोगों के पास पैसा खर्चा करने के लिए ज्यादा है, लिक्विडिटी ज्यादा है। तो पुश, जो ग्रोथ पुश मॉडल है, ये ज्यादा देर तक सस्टेन करे, इसीलिए बैलेंस क्रिएट करना जरूरी है। अभी ये समझ में आया कि भैया मार्केट्स को, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को समझ में आया कि ग्रोथ पुश मॉडल से हमने हमारी कंट्री को रिसेशन, इमीडिएट रिसेशन से बचा लिया। जैसा कि अभी हम वेस्टर्न कंट्रीज में देख रहे हैं कि इमीडिएट रिसेशन आ रहा है। वहां पे हुआ क्या कि जब काम पूरी दुनिया में लोग कम खर्चा कर रहे थे, घर में बैठे थे, उस समय हमने मार्केट में ग्रोथ पुश करी। तो जब उससे ग्रोथ पुश करी तो क्या हुआ? वो प्रोडक्ट्स का जनरेशन बढ़ा, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ा, तो जो सप्लाई साइड है वो थोड़ा सा ऊपर आया। अब सप्लाई साइड ऊपर तो आया, पर साथ में तेल भी हमें इंटरनेशनल फोर्सेस की वजह से महंगा दिखा, तो सप्लाई साइड थोड़ा सा कम हुआ। लेकिन लॉकडाउन चल रहा था, उस टाइम पे क्या था पूरा सिनेरियो? सब घर में बैठे थे, तेल का खर्चा ज्यादा था नहीं, तो क्या हुआ? उस टाइम पे थोड़ा सा बैलेंस क्रिएट हुआ। इसको हम सस्टेन कर ले गए। कब तक सस्टेन कर ले गए? हम मार्च 2022 तक इस चीज को सस्टेन कर ले गए। मार्च 2022 में आरबीआई ने देख लिया कि अब कोई दूसरी पॉसिबिलिटी लॉकडाउन की है नहीं, और दूसरी बात ये कि तेल के जो प्राइस हैं वो ठंडे हो नहीं रहे, वो अभी भी महंगे ही हैं। तो और आरबीआई ने ये भी देखा कि फाइनेंस मिनिस्ट्री ने टाइमली डिसीजन लिया है और 5 रुपए वैट कम कर दिया है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके से कम किया गया। तो फाइनेंस मिनिस्ट्री ने जो टैक्स कलेक्ट कर रही थी पेट्रोल पे, वो कम कर दिया। इसका मतलब ये है कि लोग अभी भी घर से बाहर निकलेंगे, लोग अभी भी काम पे जाएंगे, लोग अभी भी पैसा खर्चा करेंगे। तो आरबीआई ने तुरंत मीटिंग करी और बोला कि यार अब थोड़ा ग्रोथ पुश मॉडल को रोकते हैं, इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाते हैं। इंटरेस्ट रेट्स आरबीआई कैसे बढ़ाती है? जिस
इंटरेस्ट पे वो बैंकों को पैसा देती है, वो रेट को वो बढ़ा देती है। तो रेपो रेट बढ़ा दिया। अब जब रेपो रेट बढ़ा दिया तो क्या हुआ, तुरंत ही बैंक के इंटरेस्ट रेट्स उछाल मार गए, यानी कि ज्यादा हो गए। अब तुरंत लोन टेकिंग एपेटाइट लोगों का कम होगा। धीरे 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 इकोनॉमी को हम 2022 से पार करा ले जाएंगे। जब इकोनॉमी को हम 2022 से पार करा ले जाएंगे, 2023 में वापस से बजट आएगा और फिर से ये साइकिल एक नए फाइनेंशियल ईयर में स्टार्ट हो जाएगी। तो इसका मतलब इन्फ्लेशन जो कंट्रोल करने वाली बॉडी है वो कौन सी होगी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, करेक्ट। और दूसरा, जीएसटी काउंसिल कैसी बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ये क्या करती है, बेसिकली टाइम टू टाइम रिकंस्ट्रक्ट करती है टैक्स स्ट्रक्चर को। ये जो पॉइंट था ये समझाना जरूरी था, क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन आपस में बहुत ज्यादा रिलेटेड हैं पर बहुत कंफ्यूजिंग भी है ना। इसीलिए दो टर्म्स याद रखिएगा, एक होती है गवर्नमेंट की अपनी फिस्कल पॉलिसी। क्या होती है, फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी बोले तो फाइनेंस मिनिस्ट्री, बोले तो फाइनेंस मिनिस्ट्री, बोले तो बजट। और दूसरी होती है मॉनेटरी पॉलिसी, दूसरी होती है मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी बोले तो कंट्रोलिंग द अमाउंट ऑफ मनी इन द मार्केट, लिक्विडिटी इन द मार्केट, कंट्रोलिंग द अमाउंट ऑफ मनी, एंड दिस इज डन बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सो दो पॉलिसीज हैं मॉनेटरी पॉलिसी। साल भर में रैपिडली चेंज कौन सी होगी, मॉनेटरी पॉलिसी साल भर में 4 टाइम्स चेंज होती है। वेयरएज फिस्कल पॉलिसी जो है वो बजट है, वो बजट 1x आता है और टाइमली मीटिंग होती है, जीएसटी की पीरियोडिक मीटिंग होती है, जीएसटी काउंसिल की पीरियोडिक मीटिंग होती है। वो अपना थोड़ा मोड़ा टैक्स स्ट्रक्चर ऊपर नीचे करते रहते हैं, डिपेंडिंग ऑन गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर कहाँ पे कैसा है। ठीक है, क्या आपको इसमें कोई कंफ्यूजन हुआ, वर यू एबल टू गेट इट? ऑल राइट, गुड। आई हैव अच्छा, मेरा चेहरा आ रहा है, एक काम करता हूं मैं, जस्ट गिव मी अ मिनट। इसको छोटा कर देता हूं। अब सही है। आई वोंट थिंक कि अब कोई प्रॉब्लम आएगा आपको, अब मुझे लगता नहीं। प्लीज एक्नॉलेज अगर सही हो गया तो। ये व्यू अगर आपको क्लियर हो गया है तो आप बताइए, जस्ट एक्नॉलेज इन द चैट। ठीक है, चलो ग्रेट। अब आते हैं हमारे करंट अफेयर्स के कैसे टॉपिक पे, पहले टॉपिक पे, करंट अफेयर्स के पहले टॉपिक पे आते हैं। ये है हमारा वाराणसी को कल्चरल टूरिज्म सेलेक्ट किया गया है शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का। इसमें आपको शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो सेक्रेटरी जनरल हैं जांग मिंग, वो नाम आप याद रखिएगा, सेक्रेटरी जनरल जांग मिंग, राइट। वाराणसी को कल्चर और ट्रेडिशन कैपिटल की तरह 2022 से लेके 2023 तक के लिए सेलेक्ट किया गया है। ठीक है, शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो हेड क्वार्टर है वो बीजिंग हेड क्वार्टर है। कहाँ है, बीजिंग में है। नाम शांघाई है बीजिंग में, इस तरीके से आप याद रख सकते हो। कितनी कंट्रीज इसका पार्ट है, दिस इज अ 8 मेंबर इकोनॉमिक सिक्योरिटी अलायंस। ठीक, कैसा अलायंस है, इकोनॉमिक और सिक्योरिटी अलायंस। तो इसका इकोनॉमिक विंग जो है वो तो मिलता रहता है, जो सिक्योरिटी विंग है उसको हम रैट्स के नाम से जानते हैं, रैट्स के नाम से जानते हैं। और ये उज्बेकिस्तान में है, इसका हेडक्वार्टर उज्बेकिस्तान में है। ये देश, ये शहर का नाम आप अक्सर सुनते हो ताशकंद, एक मूवी भी बनी है ताशकंद फाइल्स, तो आपको याद रहेगा ताशकंद बोले तो सिक्योरिटी, बोले तो रैट्स। और इकोनॉमिक अब जो है, अब इसके मेंबर्स जो हैं वो आपसे इंपॉर्टेंट है, चाइना, रशिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इंडिया, पाकिस्तान। इंडिया और पाकिस्तान इस ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर बड़े ही रिसेंटली बने हैं 2017 में, जबकि चाइना, रशिया, कजाकिस्तान ये सारे जो मेंबर्स हैं ये आपको दिखाई देंगे 2001 से। शांघाई 5 के नाम से हम इसको पहले जानते थे। किस नाम से जानते थे, शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन को शांघाई 5, यानी 5 देशों ने आके इस सिक्योरिटी और इकोनॉमिक यूनियन का शुरुआत किया था। और इसके फंडामेंटली आप देखोगे सन 2000 की बात है, और सन 2000 में आपको रशिया इंटरनेशनल फोरम में बढ़ते हुए नजर आएगा। रशिया अपनी छवि को नए तरीके की सरकार के आने के बाद सुधारने की कोशिश कर रहा था।
इसीलिए उसने मल्टीलैटरल ग्रुपिंग्स और यूरोपियन यूनियन और फिर इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, इन सब चीज़ों के पॉइंट ऑफ व्यू से इंटरनेशनली मेजर रोल प्ले करना स्टार्ट किया। उसी के दौरान 2001 में उन्होंने सेंट्रल एशिया पे भी फोकस किया। सेंट्रल एशिया उस समय काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट से गुजर रहा था। आर्मीनिया, अजरबैजान की अपनी लड़ाई है, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान की अपनी बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। इस वजह से वहाँ पे स्टेबिलिटी लाना ज़रूरी था, क्योंकि फिर रशिया और चाइना जो है अपने शायद बड़े एजेंडा पे फोकस नहीं कर पाते, तो इन लोगों ने सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ को इंक्लूड करने की कोशिश करी। इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न ये भी है कि ये जो देश हैं ये पहले यूएसएसआर का पार्ट थे। तो यूएसएसआर किसी ना किसी माध्यम से, जो यूएसएसआर वाली आइडियोलॉजी के, जो सोशलिस्ट आइडियोलॉजी के लोग जो अभी भी रशिया की सरकार में गवर्नेंस में बाकी हैं, वो चाहेंगे कि सेंट्रल एशियन रीजन उनसे किसी ना किसी फॉर्मेट में जुड़ा रहे। अच्छा, उनका सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू भी रखना ज़रूरी है, क्योंकि आप देख रहे हो रिसेंट टाइम्स में ये नाटो ऑर्गेनाइजेशन के फॉर्म में यूरोपियन यूनियन और अमेरिका किस तरीके से अपनी हेजेमोनी को, अपने इन्फ्लुएंस को आपको एशिया और पैसिफिक रीजन में बढ़ाते हुए दिखाई देते हैं। तो इन सारे कॉन्टेक्स्ट को ध्यान में रखते हुए शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत की गई थी। और इंडिया और पाकिस्तान को जोड़ना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि ये उनके लिए इंडियन ओशन के एग्जिट पॉइंट पे एक अनस्टेबल रीजन या अनस्टेबल कंट्रीज या अनस्टेबल पॉलिटिकल रिलेशंस वाले देश दिखाई देते हैं। इसमें ज़रूरी था कि इनको क्या किया जाए, इंडिया और पाकिस्तान को जोड़ लिया जाए, क्योंकि इनसे उम्मीदें ज़्यादा है। अच्छा, एक कंट्री आप और सोच रहे होंगे कि अगर इंडिया और पाकिस्तान को, मतलब शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में, अगर इंडिया, if this is India and this is Pakistan, if this is Pakistan, right? And you are saying, sir, they are concerned about Indian Ocean. So why have not they included Iran? Because Iran is also a stable route. Notice the period which we are talking about, 2000. At this time, Iran was also Iran, Russia, North Korea. These are countries that are anti-Western ideology. Iran was also trying to influence, or you see, it was trying to create good relations with the Western economies in the period of 2000. So ईरान को डायरेक्टली ले भी नहीं सकते थे रशिया वाले, क्योंकि रशिया नहीं चाहते थे कि इसकी एससीओ की गंदी नज़र वेस्टर्न कंट्रीज में पड़ जाए और इसको वो एक एंटी वेस्टर्न, एंटी डेमोक्रेटिक यूनियन जैसा मीनिंग देने लगे। क्योंकि ईरान को तुरंत लेने का मतलब था अमेरिका को जगा देना, अमेरिका को सचेत कर देना। अमेरिका इंडिया पाकिस्तान की मेंबरशिप में उतना नहीं अवेयर, उतना नहीं दैट लुकिंग इनटू थिंग्स विद द ब्रॉडर आए कि क्या हो गया, वाइडर आए। तो इसमें ईरान को इसलिए पार्टी बनाया। लेकिन अब यही तो गेम है, ईरान और बेलारूस, ये दो ऐसे देश हैं जिनको एससीओ में अब जोड़ने की बात की जा रही है। यानी कि अब लड़ाई जो है शायद एक तरफा होती नजर आ रही है कि हम तो करेंगे, जो तुमसे करते बने, रोकते बने रोक लो। ईरान, क्योंकि अगेन देखो, इंडिया और पाकिस्तान में जो रिलेशंस हैं जब वो स्टेबल नहीं हो पाएंगे, इंडिया और पाकिस्तान में जो रिलेशंस हैं जब वो स्टेबल नहीं हो पाएंगे, तो ऐसे में होगा क्या? आपको एक एग्जिट रूट की जरूरत पड़ेगी, और वो एग्जिट रूट आपके लिए ईरान होगा। दूसरा, बेलारूस को अगर तुम देखोगे तो इफ दिस इज यूक्रेन, अगर यहाँ पे यूक्रेन है, ठीक है, एंड देन यू विल फाइंड दैट दिस इज समवेयर, दिस इज रशिया। इफ दिस इज रशिया, Belarus is a country above Ukraine. This is Belarus. So Belarus is important for Russia in terms of security. And both you will find Iran, India, and Russia in the same year they have proposed an international route. 2000 के आसपास में इन्होंने INSTC कॉरिडोर प्रमोट किया था। INSTC 13 कंट्रीज से होके जाता है। करेक्ट है कि नहीं करेक्ट है? 7200 किलोमीटर का है, ये हम सब पढ़ चुके हैं। लेकिन INSTC के अब कंट्रीज जो हैं वो एससीओ की कंट्रीज में जोड़ के देख लेना बेटा, एससीओ की सारी कंट्रीज तुमको INSTC का पार्ट दिखाई दे जाएंगी। तो एससीओ एक तरह का यूनियन बन रहा है इंटरनेशनल ट्रेड रूट क्रिएट करने के लिए। INSTC बोले तो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांजिट कॉरिडोर, और इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांजिट कॉरिडोर में जरूरी क्या है? चाबहार पोर्ट। क्या जरूरी है? चाबहार पोर्ट। चाबहार पोर्ट जरूरी है, तो ईरान को तो भैया इसका पार्ट बनाओ, तभी तो बात आगे बढ़ेगी। वही काम चल रहा है। और ऐसे में पहली बार इन्होंने कोशिश की है कि वो क्या करेंगे, यूनियन कल्चर को प्रमोट करने की कोशिश करेंगे। अब कल्चर को प्रमोट करने की कोशिश तो कर रहे हैं, ये अच्छी बात है, लेकिन इसमें हमें एक चीज़ और बड़ी कंफ्यूज करती है एससीओ की मीटिंग।
कभी सुनते हैं तो उज़्बेकिस्तान में हो रही है, कभी सुनते हैं तजाकिस्तान में हो रही है। साल भर में इसकी तो 4-4 मीटिंग्स हो जाती हैं। तो कौन सी मीटिंग को हम सही माने, ये क्वेश्चन जो आता है। एससीओ की जो मीटिंग्स होती है ना डियर, एससीओ की मीटिंग्स बेसिकली जो हमारे क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है, वो 3 लेवल की मीटिंग ज़रूरी है। 3 लेवल की मीटिंग ज़रूरी है। एक होती है काउंसिल ऑफ हेड की मीटिंग, एक होती है काउंसिल ऑफ हेड की मीटिंग, दूसरी होती है काउंसिल ऑफ गवर्नमेंट की मीटिंग, काउंसिल ऑफ गवर्नमेंट, या आप काउंसिल ऑफ गवर्नमेंट की जगह लिख दो यहाँ पे हेड्स ऑफ गवर्नमेंट। और तीसरी होती है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर लेवल टॉक्स। हालांकि साल भर में जहां जहां ये मीटिंग हो, एक ही शहर एक ही कंट्री में नहीं होती, ये भी अच्छी बात है। एक ही कंट्री में मीटिंग नहीं होगी, सब चीज़ एक सारा बर्डन मीटिंग होस्ट करने का एक ही कंट्री पे नहीं डालते हैं। तो काउंसिल ऑफ हेड की मीटिंग में यूजुअली प्रेसिडेंट्स आते हैं, बट काउंसिल ऑफ हेड इंडिया की तरफ से हमेशा प्रधानमंत्री ही जाते दिखाई दिया है। हेड्स ऑफ गवर्नमेंट की मीटिंग में यूजुअली प्राइम मिनिस्टर्स आते हैं, लेकिन अगर इंडिया के कंटेक्स्ट में बात करें तो हेड्स ऑफ गवर्नमेंट में या तो पीएम या तो अपने एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर आपको जाते दिखाई देंगे। और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर लेवल में नेशनल सिक्योरिटी या सिक्योरिटी का जो डिफेंस सिक्योरिटी डिफेंस मिनिस्ट्री का सेक्रेटरी रहता है वो चला जाता है। तो इसमें जो हमारे लिए सबसे ज़रूरी मीटिंग है वो काउंसिल ऑफ हेड्स की मीटिंग है। काउंसिल ऑफ हेड्स की मीटिंग इंडिया कब होस्ट करेगा? इंडिया इज गोइंग टू होस्ट दिस मीटिंग in the year 2023. India is going to host the meeting in the year 2023 and this year, so 2021 में जो होस्ट था उसका नाम था तजाकिस्तान। इस मीटिंग का 2021 में होस्ट कौन था? तजाकिस्तान, जिसमें हमने सुना दुशानबे डिक्लेरेशन। 2022 का काउंसिल ऑफ हेड्स का होस्ट कौन है? उज़्बेकिस्तान। कौन है? उज़्बेकिस्तान है, जिसमें हम समरकंद सुनेंगे। और 2023 का तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, होस्ट कौन है? इंडिया। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। तो काउंसिल ऑफ हेड्स वाली जो मीटिंग होती है वो जरूरी होती है। इसमें इन्होंने कहा है कि इम्प्लीमेंट करेंगे रोटेटिंग मैकेनिज्म से। क्या? टाइटल ऑफ कल्चरल और टूरिज्म कैपिटल अमंग द मेंबर स्टेट्स हर साल। Under this initiative, each year a city of the cultural heritage of a member country will take over the rotating presidency of the organization, and they will get the title. India hosted the heads of government meeting of SCO in 2020. कौन सी मीटिंग होस्ट करी थी इंडिया ने 2020 में? हेड ऑफ गवर्नमेंट की मीटिंग। और इंडिया इज गोइंग टू होस्ट द हेड ऑफ स्टेट लेवल मीटिंग किस ईयर में सर? 2023. The organization new initiative ahead of this year's heads of state summit SCO scheduled to be in Samarkand, Uzbekistan, September 15 this year. ये सारी चीजें मैंने क्या कर दी, आपको समराइज कर दी। Initiative will come into force after the Samarkand summit, following which India will take over presidency and host the next head of summit. करेक्ट? तो हमारा शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन वाला टॉपिक क्लियर हो गया है। अगर आपको ये चीज़ समझ में आई है, नोट्स आपको अच्छे लगे हैं, तो आप एससीओ को बढ़िया से प्रिपेयर कर लेना। क्योंकि क्या है कि 2020 और 2021 से सोच रहे थे कि ये चीज़ ज़रूरी है, पर पूछी नहीं गई। अब मे भी हो सकता हो पूछी जाए। ठीक है, समझ में आया ना? समझ में आया? आगे बढ़े। शैल वी मूव टू द नेक्स्ट करंट अफेयर्स? सी वी आर गोइंग स्लो, दैट्स ट्रू। हम धीरे पढ़ रहे हैं, सही बात है, पर हम चीज़ों को समझते हुए चल रहे हैं। तेज़ी में ज़्यादा करंट अफेयर्स एक साथ कंज्यूम कर लोगे, याद नहीं रहेगा। बेहतर है टुकड़ों में तोड़िए। 7 दिन का टास्क है आपके पास, 24 टॉपिक्स हैं, 4 टॉपिक्स आप एक दिन में करो तो आपका क्या होगा? कवर हो जाएगा। करेक्ट है? जागृति को मैस्कट चुना गया है। ये रिप्रेजेंटेशन कैरेक्टर है। ये इमेज में आप जो ये महिला देख रहे हो, ये जागो ग्राहक जागो के आपको हर स्टेटमेंट के साथ दिखाई दे जाएगी। जागो ग्राहक जागो। इसमें जो कंसर्न डिपार्टमेंट इन्वॉल्व है वो है डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स। डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स किसके अंडर आएगा? मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के अंडर आएगा। किसके अंदर आएगा? मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। इसके मिनिस्टर कौन है? पीयूष गोयल। इसके मिनिस्टर कौन है? पीयूष गोयल। ठीक है, जागृति लॉन्च किया है एम्पावरिंग कंज्यूमर्स एंड जनरेटिंग अवेयरनेस ऑफ देयर राइट्स। ठीक है, थैंक यू सो मच।
Jagrati mascot will be used to generate consumer awareness. Various themes of department like provisions of Consumer Protection Act 2019, National Consumer Helpline number 1915, provisions of Weights and Measures Act, Central Consumer Protection Authority, ये authority important है, Consumer Protection Authority, and testimonials by consumers on grievance redressal. Which means that the biggest problem that the Consumer Protection Act is facing right now is related to the grievances of the consumer, not they are not timely settled. By bringing the Jagrati mascot, the Department of Consumer Affairs has tried to strengthen its consumer awareness campaign in digital and multimedia forum. Moving further ahead, we have to discuss what are the key facts about these two acts: Consumer Protection Act of 1986 and Consumer Protection Act of 2019. So these are the areas where you can compare the two acts. Consumer Protection Act 1986 is basically a weak act. It's a weak act. Now this has been improved in 2019. As you with regards to regulator, you will find that there is no regulator, which means इसको समझने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए, इसमें बदलाव करने के लिए कोई बॉडी रिस्पॉन्सिबल, कोई भी बॉडी नहीं थी. अभी इन्होंने एक बॉडी बना दी है, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी. सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी 2019 की एक्ट के अंडर बनाई गई. तो इस बॉडी का नेचर कैसा हो गया डियर? ये हो गई स्टैट्यूटरी बॉडी. स्टैट्यूटरी बॉडी अंडर द एक्ट इज सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी. ऑब्वियसली इसका जो हेड होगा वो सेक्रेटरी लेवल का ही होगा. कंज्यूमर कोर्ट जो है, कंप्लेंट कोड बी फाइल्ड इन अ कंज्यूमर कोर्ट वेदर द सेलर ऑफिस इज लोकेटेड. फॉर एग्जाम्पल, यू आर अ परचेजर एंड यू हैव बॉट सर्टेन गुड्स इन लुधियाना, but you are a resident of Delhi, and in that case, if you have a complaint related to that particular goods, where you have to file the complaint? You have to file the complaint where the seller is. Now that became a problematic because most of the consumers tried to avoid filing cases and tried to avoid invoking their consumer rights. कौन पड़े इस झमेले में वाला सीन था. कंज्यूमर कोर्ट के उस में भी चेंज किया गया और बोला गया एक कंज्यूमर कोर्ट में कहीं भी फाइल कर सकते हैं जहाँ पे कंप्लेनेंट रहता है या काम करता है. तो कंप्लेनेंट की तरफ लॉ फेवरेबल होना चाहिए था, अब किया गया है. नो प्रोविजन, पहले प्रोडक्ट की लाइबिलिटी का कोई प्रोविजन नहीं था. आप क्या है, सिविल कोर्ट जा सकते थे, कंज्यूमर कोर्ट नहीं जा सकते थे. अब यहाँ पे आप कंज्यूमर जो है वो कंपेंसेशन ले सकता है बाय अ प्रोडक्ट और सर्विस. यानी कि अगर फ्रूटी नाम की कोई भी कोल्ड ड्रिंक फ्रूटी नाम से बिके किसी पर्टिकुलर गांव में, तो आप कंज्यूमर कोर्ट नहीं जाओगे सर, आप सिविल कोर्ट में जाओगे, क्योंकि ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का वायलेशन माना जाएगा. इसमें कंज्यूमर को किसी तरह का नुकसान हुआ है. बड़े ताजुब करने वाली बात थी कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में मेंशन नहीं किया था. लेकिन अब आईपी राइट्स के लिए नहीं जाओगे आप, क्योंकि ट्रूटी तुम्हारा तो नहीं है ना, ट्रूटी तो तुम पी रहे थे. उस ट्रूटी पीने की वजह से तुम अब डायरेक्टली कंज्यूमर कोर्ट में भी जा सकते हो. यानी आईपी रेगुलेशंस के लिए डायरेक्टली ओनर को नहीं बुलाएगा, कंज्यूमर को बुला लेगा कोर्ट और बोलेगा कि बताओ क्या दिक्कत हो गई. ठीक है, तो सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी जो है अब इन्वेस्टिगेट करेगा ऐसे मैटर को. तो ये कहीं ना कहीं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है. ठीक है, अब दूसरा जो और एरिया है वो है, देखो, पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन का. पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन बोले तो जुरिस्डिक्शन रिलेटेड टू मनी. नाउ जुरिस्डिक्शन रिलेटेड टू मनी अगर कम है तो कोर्ट की पावर भी कम है. जब ज्यादा बड़े महंगे मैटर्स को कोई कोर्ट सुन सकता है तो वो कोर्ट स्ट्रांग होता है. तो पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अप टू 20 लाख से, स्टेट लेवल पे 20 लाख से 1 करोड़ तक, नेशनल लेवल पे 1 करोड़ से ज्यादा. जबकि नए वाले जो एक्ट है इसके अंडर पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन बढ़ा दिया गया है और जिला स्तर पे 1 करोड़ से ज्यादा, राज्य स्तर पे 1 से 10 करोड़, नेशनल पे अबव 10 करोड़ पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन बढ़ाते हुए. ई कॉमर्स के लिए कोई रूल नहीं था, अभी आपको रूल दिखाई दे जाएंगे. सुलह कराने के लिए, समझौता कराने के लिए भी कोई प्रोविजन नहीं था. कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 मीडिएशन के माध्यम से सुलह भी करा सकती है. और अगर मीडिएशन करवा दी कोर्ट ने तो लोगों को क्या चाहिए, कंज्यूमर को क्या चाहिए? या तो अच्छी सर्विस चाहिए या तो पैसा मुआवजा चाहिए. अब मीडिएशन के माध्यम से अगर किसी बीच के डिसीजन पे आ जाएं ये लोग और मीडिएशन करा लें तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट क्या है, स्ट्रेंथन हो रही है. ग्रीवेंस रिड्रेसल स्ट्रेंथन हो रहा है. आप में से 2 टॉपिक्स हमने किए हैं अभी तक. सबको सारे टॉपिक्स क्लियर हो गए कि नहीं? प्लीज मुझे चैट बॉक्स में बता दीजिए दैट वी मस्ट मूव फर्दर. जस्ट पुट अ थम्स अप, इन द चैट.
all right, all right, great, great. Since see एक्चुअली क्या है ना, ये थोड़ा सा मेरे लिए मतलब टैब एंड ऑल कनेक्ट करके ना, इट्स अ वेरी न्यू थिंग टू मी. सो though I'm excited, no doubt, it's a good thing. It's a very convenient thing also, uh, to take live classes. I had taken, there would be certain videos, but those were for ninth and 10th standard students. Uh, so great, great, great. I think I have a okay. I have a Wi-Fi connection and it's a Geo fiber. I think it's going fine so far. Maybe. Consumer Protection Act. With regards to Consumer Protection Act, what you have to understand, the topics that we have discussed. Just remember the came into force date 20th July 2020, right? So the comparison has been given already over there. We'll try to move further with the third topic, commissioning of INS Vikrant. Now, commissioning of INS Vikrant, India's first indigenous aircraft carrier. You have to just remember the builder name, Cochin Shipyard Limited. Cochin Shipyard Limited, Kochi. The displacement, the size is basically ascertained by amount of water that it is able to displace, and it is 45,000 tons, which is humongous, which is the largest so far in India. The designer of this is India's Navy in-house Directorate of Naval Design, DND, Director of Naval Design, and this is basically built by Cochin Shipyard Limited. It is a public sector company under Ministry of Shipping, right? So this particular war in 1971 war, this ship was already there, but it was decommissioned because it was too old. Now this ship basically is a successor, or you can say the second ship aircraft carrier successor of INS Vikramaditya. INS Vikramaditya is a small ship as compared to this, but the fact of the matter is that it was developed and provided by Russia. It was developed and provided by Russia, and INS Vikrant also is being helped by Russia. Now, but this ship, 76% of this ship is designed by us under Atmanirbhar Bharat, right? And the best part in this ship is that it has a operating air wing consisting of 30 aircraft of MiG-29 fighter jets, Kamov 31, MS-60 are multi-role helicopters, advanced light helicopters, and light combat aircrafts. This basically ship can accommodate an assortment of fixed wing and rotary aircraft, which means helicopters and aeroplanes combined. So इतने सारे जेट फाइटर्स और इतने सारे ये एरोप्लेन्स को, हेलीकॉप्टर्स को जगह दे सकता है. इससे क्या होता है, आप जब इंडियन ओशन की सिक्योरिटी में बात करोगे, तो इम्पोर्टेंट एक इंटरनेशनली एक टर्म है ब्लू नेवी का, ब्लू नेवी स्टेटस. ये ब्लू नेवी स्टेटस जानते हो क्या होता है? ये ब्लू नेवी स्टेटस वो होता है, किसी ऐसी कंट्री की नेवी को दिया जाता है जो इंटरनेशनली कहीं पे भी अवेलेबल है, कहीं पे भी है, इंटरनेशनल वाटर्स की सिक्योरिटी के लिए होगी. और अमेरिका की नेवी को ये दर्जा प्राप्त है. अमेरिका की नेवी को ब्लू नेवी स्टेटस का दर्जा प्राप्त है, इसीलिए अमेरिका की नेवी हर कंट्री के आसपास से होते हुए गुजरते हुए नजर आती है. ठीक है, तो ये वाला टॉपिक हमारे लिए इतना ही क्वेश्चन था, इतना ही था, टॉपिक खत्म हो गया. अब ये कमीशनिंग डेट अगर आपसे कोई पूछ दे कि किस तारीख को कमीशन हो रहा है, तो आप याद रखिएगा 15 अगस्त 2022 आज़ादी का अमृत महोत्सव वाले तारीख को ये शिप कमीशन हो रहा है. यूएस ने काटसा वेवर जो है वो इम्पोज किए हैं, नहीं रिमूव किए हैं. वेवर का मतलब होता है काटसा सैंक्शंस हटाना. तो यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ने वॉइस वोट के माध्यम से, यानी कि मौखिक रूप से, एक लेजिस्लेटिव अमेंडमेंट प्रपोज किया है जिसमें वेवर मिलेगा इंडिया को फॉर प्यूनिटिव काटसा सैंक्शंस फॉर द परचेज ऑफ S-400 डील्स. नाउ दिस पर्टिकुलर वेवर वाला जो अमेंडमेंट है, रो खन्ना नाम के कांग्रेसमैन ने इंट्रोड्यूस किया वहां पे, और अब इसमें बस चाहिए बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन, यानी जोई बाइडेन का हस्ताक्षर. यानी कि काटसा जो सैंक्शंस हैं वो कंप्लीटली अभी रिमूव नहीं किए गए हैं, उनको रिमूव करने की बात की गई है, और वहां का जो लेजिस्लेचर है उसने अप्रूवल दे दिया है. लेजिस्लेचर ने क्या किया है, अप्रूवल दे दिया है. ये जो लॉ है ये 2017 में बनाया गया था. इसमें जो अमेरिकन एडवर्सरी बोले तो अमेरिका को जो लगता है सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से उसके जो दुश्मन है, अमेरिकन एडवर्सरी ईरान है,
अमेरिकन एडवर्सरी नॉर्थ कोरिया है, अमेरिकन एडवर्सरी रशिया को ये लोग लेके चलते हैं, हाल फिलहाल में हो सकता हो चाइना को भी लेके चलें। तो अमेरिका, और दूसरा इन्होंने टर्की। तो टर्की अमेरिकन एडवर्सरी तो नहीं है, लेकिन टर्की पे क्या किया गया है, काटसा सैंक्शंस लगाए गए हैं। बताओ, टर्की एक ऐसा देश जो कि नाटो का पार्ट है, इसने क्या किया था, रशिया से क्या ले लिया था, S-400 परचेज कर लिया था। रशिया से S-400 परचेज करने की वजह से इस पे भी सैंक्शन लगा दिया। अब इंडिया पे भी यही बात चल रही थी। इंडिया ने क्या किया था 2018 में, बेसिकली अक्टूबर 2018 में 5 बिलियन डील जो है रशिया के साथ 5 यूनिट S-400 खरीदने की बात करी थी। और अमेरिका ने बोला था कि ये जो मोस्ट एडवांस्ड लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, यूएस को ने ऑलरेडी टर्की पे सैंक्शंस लगाया हुआ है अंडर कार्डसा फॉर द परचेज ऑफ दिस, इंडिया माइट ऑल्सो बी द नेक्स्ट, राइट। एंड विद दैट थॉट इंडिया ने काफ़ी सारे डील्स अभी जो है अमेरिका रशिया के साथ कम कर दी। बीच में काफ़ी सारे जेट फाइटर्स लेने वाला था, वो नहीं लिया। ऐसे केस में अमेरिका अपने आप को रीपोस्चर कर रहा है और उसने कार्डसा सैंक्शंस हटाने की बात करी है। अब इसमें जोई बाइडेन क्या कर सकते हैं वो देखने वाली बात है। ये चीज़ याद रखिएगा कि कार्डसा में इम्पोजिशन जो है, सैंक्शन लगाना, इम्पोजिशन ऑफ सैंक्शन जो है वो प्रेसिडेंट प्लस पार्लियामेंट दोनों का है। लेकिन कार्डसा के अंडर अगर इमरजेंसी रिमूवल चाहिए किसी कंट्री का, त्वरित रूप से किसी को हटाना है, तो वो पावर प्रेसिडेंट के पास है। प्रेसिडेंट को पार्लियामेंट से पूछने की भी जरूरत नहीं है फॉर रिमूवल अंडर कार्डसा सैंक्शंस। बट हाँ, इम्पोज करना है सैंक्शंस तो वहाँ प्रेसिडेंट और पार्लियामेंट दोनों की रिक्वायरमेंट है। ये एक ऐसी बात है जनरली आपको न्यूज़पेपर में अक्सर नहीं देखने को मिलेंगी कि कार्डसा कैसे काम करता है, तो यहाँ पे आप देख के समझ सकते हो, ठीक है। ऐसा ना हो कि रिकॉर्डिंग नहीं हुई है। आपको कोई क्वेश्चन आ रहा है तो आप डेफिनेटली लाइव चैट में पूछ सकते हो, सिर्फ सुनते नहीं रहना। अगर कोई क्वेश्चन आए तो पूछ लेना। डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट थे, ये फैक्ट्स आपके बेसिक 5 फैक्ट्स हो गए। अब किस किस कंट्री पे इम्पोज कर चुके हैं, ईरान, नॉर्थ कोरिया, रशिया और टर्की, इन 4 कंट्रीज पे इम्पोज कर चुके हैं। अब आते हैं हमारे इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021। देखो इंडिया इनोवेशन इंडेक्स क्या है, हो सकता है ये, व्हाट आर द salient facts about इंडिया इनोवेशन इंडेक्स। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स एक ऐसा इंडेक्स है जो कि 2019 से निकल रहा है। कब से निकल रहा है, 2019 से फर्स्ट रिलीज किया गया है इंडिया इनोवेशन इंडेक्स को। रिलीज करने वाली बॉडी का जो नाम है वो है नीति आयोग। ये जो नीति आयोग है इसके जो चेयरमैन है वो नए चुने गए हैं। इनका नाम है परमेश्वरन अय्यर। ठीक है, नीति आयोग कैसी बॉडी है, इट्स स्टैट्यूटरी कॉन्स्टिट्यूशन, इट्स नन ऑफ दैट, इट्स अ थिंक टैंक, इट्स अ थिंक टैंक ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इट्स अ थिंक टैंक ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इट वाज फॉर्म्ड इन 2015, इट वाज फॉर्म्ड इन 2015। ये नीति आयोग के बारे में हम कुछ बात बेसिक फैक्ट्स कर रहे हैं, ठीक है। 2015 में बनाया गया था। इसने क्या किया, रिमूव किया, रिप्लेस किया, रिमूव किया, नॉट रिमूव, रिप्लेस वुड बी द राइट वर्ड। It has replaced Planning Commission. Planning Commission was of 1951, correct? अभी चेयरमैन परमेश्वरम है, इन्होंने किसको रिप्लेस किया है, इन्होंने रिप्लेस किया है फॉर्मर इसरो के सीईओ। चेयरमैन नहीं लिखते हैं हम यहाँ पे, दैट्स अ रॉन्ग वर्ड, सीईओ, रिप्लेस्ड अमिताभ कांत। और नीति आयोग का जो चेयरपर्सन होता है वो होता है आपका, चेयरपर्सन होता है वो होता है प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ द गवर्नमेंट।
तो ये बेसिक फैक्ट सीईओ नए परमेश्वरन अय्यर है, ये इंडिया इनोवेशन इंडेक्स निकालता है। इसमें स्टेट्स को, जो स्टेट्स होते हैं इनको तीन कैटेगरीज में तोड़ा जाता है। स्टेट्स को तीन कैटेगरीज में तोड़ा जाता है। एक होता है जनरल स्टेट्स। जनरल स्टेट्स में इस बार जो टॉप किया है वो है कर्नाटका। कौन सा स्टेट टॉप किया है? कर्नाटका। एक होता है नॉर्थ ईस्टर्न और हिली स्टेट्स। नॉर्थ ईस्टर्न और हिली स्टेट्स में कौन सा स्टेट टॉप किया है? उसका आंसर है मणिपुर। उसका आंसर है मणिपुर। और तीसरा जो स्टेट होता है वो होता है आपका, कैटेगराइजेशन होता है यूनियन टेरिटरी का, और यूनियन टेरिटरी जो है उसमें चंडीगढ़ टॉप किया है। ठीक है। जो इंडिया इनोवेशन इंडेक्स है ये बेसिकली बिजनेस प्रमोशन को चेक करता है, इनोवेशन को चेक करता है। इट इज इन द सिमिलर डायरेक्शन ऑफ ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स निकालने वाली वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, वीपो। ठीक है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स को निकालने वाली बॉडी वीपो। अब इसमें आप देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि कर्नाटका, मणिपुर, चंडीगढ़ ने टॉप मारा है। नीति आयोग का इंडिया इनोवेशन इंडेक्स है, फर्स्ट रिलीज इन 1919। मेजर स्टेट्स में कर्नाटका, मणिपुर नॉर्थ ईस्ट में, और चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी और सिटी स्टेट्स में। प्रिपेयर्ड बाय नीति आयोग एंड इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। प्रिपेयर्ड बाय नीति आयोग एंड इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स जो है ये नीति आयोग भी निकालता है, लेकिन नीति आयोग के साथ साथ एक बॉडी और है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस। तो याद रखिएगा, ये जनरली लोगों को हो सकता हो क्लियर ना हो। इसमें जो ये तरीका है ना कि इंटरनेशनल इंडेक्स के फॉर्म में इंडिया भी इंडेक्स निकालने लग गया है, ये नीति आयोग ने एक स्ट्रैटेजी अपनाई है। इस स्ट्रैटेजी को कहते हैं ग्लोबल इंडाइसेस टू ड्राइव रिफॉर्म एंड ग्रोथ। ग्लोबल इंडाइसेस टू ड्राइव रिफॉर्म एंड ग्रोथ, गर्ग मैकेनिज्म, राइट? गर्ग मैकेनिज्म, which Niti Aayog is the nodal organization. The index goes beyond traditional approaches by considering best parameters in measuring innovation, such as patents per million population, publication in scientific journals, परसेंटेज ऑफ जीडीपी स्पेंडिंग ऑन रिसर्च। इस माध्यम से ये फैक्टर्स देखिए क्या है, क्या क्या पैरामीटर्स को लेता है। तो पेटेंट्स पर मिलियन, ये 10 लाख, अरे सॉरी 10 लाख लोगों में, हाँ 10 लाख में कितने कितने पेटेंट्स हैं इंडिया में? यानी 10 लाख लोगों ने, किसने बता रखा है कि कोई साइंटिफिक डिस्कवरी, ये सब चीज़ें उसकी हैं? ऐसे साइंटिफिक जर्नल्स में कितने इंडियन आर्टिकल्स पब्लिश हुए, जीडीपी कितना स्पेंड हो रहा है हमारा रिसर्च और डेवलपमेंट में, ये सारे फैक्टर्स इनोवेशन इंडेक्स के अंदर लिए जाते हैं। और ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की अगर हम बात करें तो इंडिया की जो रैंक थी वो 46 थी, ये याद रखिएगा। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में इंडिया की रैंक है 46 इन ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021 की रैंकिंग में। 132 अराउंड इकोनॉमीज जो है, कंट्रीज जो है एसेस की गई, जिसमें टॉप आया है, देखो वापस से वही सारे नाम, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, स्वीडन, यूएस और यूके। अब दे हैव कंटिन्यूड टू लीड द इनोवेशन रैंकिंग। They are top 5 in the past 3 years. What is WIPO? WIPO is a specialized agency of United Nations. इंडिया की रैंकिंग 2015 में 81 थी और अभी 2021 में 46 देखी गई। सिंपल से फैक्ट्स हैं, हम इनको सिंपली रीड कर रहे हैं, सिंपली समझ रहे हैं, है ना? और मुझे लगता है कि इसमें कोई डिफिकल्टी होनी चाहिए अभी तक।